ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਰੇ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਡਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੈਪਸ ਆਫ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਡਰਾ ਐਨ ਐਂਗਲ ਆਫ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਟ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਰੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਸਟ ਵੇਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੇ ਡਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਰੇ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, P ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ P ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ Q। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਰੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਡਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 60 ਦਾ ਐਂਗਲ ਡਰਾ, ਉਸ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਸ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖੋਲਣਾ, ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਕ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ PQ ਰੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਂਗਾ R। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮੈਂ R ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੇਮ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰੇ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਰਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ S। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 60 ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਐਂਗਲ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ R ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਕੇ S ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਆਰਕ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ S ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਆਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਇਹਨੂੰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ T। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ S ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਆਰਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ T ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਕ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੇਮ ਹੁਣ T ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ S ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ T ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਜਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਕ ਡਰਾ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰਕ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਆ S ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਰਕ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰੇ। ਸੋ S ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਆਰਕ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, T ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਆਰਕ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਆਰਕਸ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ U ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ U ਹੈ, U ਨੂੰ ਅਸੀਂ P ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਆ ਸਕੇਲ। ਸੋ ਸਕੇਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ UPQ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ UPQ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੈਪਸ ਆਫ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਪਸ ਆਫ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਸਟ ਵੇਟ ਅ ਮਿੰਟ।
सो हुण साडे कोल इत्थे स्क्रीन के उपर की दिख रहा तुहानूं एक डायग्राम जिहड़ी हुणे असीं ड्रॉ कीती सीगी 90 डिग्री का एंगल इस डायग्राम दे विच असीं ड्रॉ कीता आ ते उहदे स्टैप्स ऑफ जिहड़ी कंस्ट्रक्शन है वो दोबारा मैं तुहानूं इत्थे स्क्रीन के उपर दिखा रहा। द बिलो गिवन स्टैप्स विल बी फॉलोड टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो जिहड़ा 90 डिग्री का साडा एंगल है इनू कंस्ट्रक्ट करने के लिए असीं इस तरीके नाल वर्कआउट करांगे। मैं तुहानूं पहलां दस चुका हाँ सारा, जस्ट इत्थे वर्डिंग है जी, ये तुसीं इत्थों कॉपी कर सकते हो। वैसे सिंपल है बहुत, खुद बना के लिखो तो बैटर है। सो सब तो पहला पॉइंट की है, टेक द गिवन रे पी क्यू। हुण जिहड़ी पी क्यू सीगी ये अपनी रे आ गई, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क ऑफ सम रेडियस, किसी भी रेडियस की असीं आर्क ड्रॉ करांगे एट पॉइंट पी एज इट्स सेंटर। हुण जिहड़ा पी पॉइंट है इनू सेंटर लैके एक आर्क ड्रॉ की, वो असीं ये कर ली है, ठीक है। विच इंटरसैक्ट पी क्यू एट आर, जिहड़ा पी ते क्यू है, ठीक है, पी ते क्यू है उन्होंने इंटरसैक्ट किहड़े पॉइंट ते करदा पिया है, आर पॉइंट के उपर करदा पिया है। फिर सैकेंड स्टैप की है, टेकिंग आर एज सेंटर। हुण जिहड़ा आंदा आर है उन्होंने सेंटर लै लो एंड विद द सेम रेडियस एज बिफोर, तो सेम जिन्ना रेडियस पहला सीगा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ पी ਨੂੰ सेंटर लिया सीगा उस रेडियस की एक ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क ड्रॉ करो इंटरसैक्टिंग प्रीवियसली ड्रॉन आर्क एस, ठीक है। जिहड़ी प्रीवियसली ड्रॉन आर्क है साडी उन्होंने इंटरसैक्ट करती पई आ एस पॉइंट। सो एक आर्क ड्रॉ करो आर ਨੂੰ सेंटर लैके विद सेम रेडियस एज जिहड़ी ਅਸੀਂ पहला आर्क बनाई है उहदे जिन्ना रेडियस लैके, सो इत्थों ड्रॉ किया ए वाला पॉइंट लगा दिता। सिमिलरली एस ਨੂੰ सेंटर लैके टी वाला पॉइंट लगा दिता। टेकिंग एस एज सेंटर विद द सेम रेडियस एज बिफोर ड्रॉ एन आर्क इंटरसैक्टिंग आर्क, ठीक है। सी द फिगर ये तुसीं देख सकते हो। फिर अगे फोर्थ पॉइंट की आ, टेकिंग एस एंड टी एज सेंटर। हुण एस ते टी ਨੂੰ ਅਸੀਂ सेंटर लैके ड्रॉ एन आर्क ऑफ सेम रेडियस, एक आर्क ड्रॉ करनी है सेम रेडियस दी टू इंटरसैक्ट ईच अदर एट यू। हुण एस ਨੂੰ लैके सेंटर एक आर्क ड्रॉ करनी है तो टी ਨੂੰ लैके एक आर्क ड्रॉ करनी है, किस तरीके दे नाल कि दोनों आर्क इंटरसैक्ट करन ते उस पॉइंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ नाम दे दांगे यू, ठीक है जी। जॉइन पी यू, हुण पी ते यू ਨੂੰ ਅਸੀਂ जॉइन कर दांगे, ਜਦੋਂ दोनों ਨੂੰ जॉइन करांगे विच इज़ द रिक्वायर्ड रे मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद गिवन रे पी क्यू, ठीक है। हुण ये की होएगा साडे कोल इत्थे एंगल आएगा एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। ज्वाइनिंग पी यू विच इज़ रिक्वायर्ड रे मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद गिवन रे पी क्यू। जी पी क्यू साडे कोल गिवन रे सी उहदे नाल ए वाली रे जिहड़ी है पी यू वो 90 डिग्री एंगल बनाती है। हुण ये तो हो गए स्टैप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। इस तो बाद असीं हुण करांगे इहदी जस्टिफिकेशन। सो देखो हुण इत्थे की है कि साडे कोले 90 डिग्री का एंगल किवें है, इनू जस्टिफाई करना है साडी कंस्ट्रक्शन नूं। सब तो पहला तो तुसीं 60 डिग्री का एंगल देखिया सीगा किवें बनिया सीगा, वो की कीता सीगा जस्ट एक रे ड्रॉ की, एक आर्क उन्होंने जिहड़ा इनीशियल पॉइंट आ उन्होंने सेंटर लैके एक आर्क ड्रॉ की। आर जिथे जिहड़े पॉइंट ते रे नूं कट करदी सीगी उस पॉइंट नूं इस केस दे विच आ रहा वो पॉइंट, उस पॉइंट नूं सेंटर लैके एक जिहड़ी पहला ड्रॉ कर चुके हैं आर्क उन्होंने इंटरसैक्ट किया ते उस पॉइंट नूं, ठीक है नहीं, जॉइन कर दिता सीगा पी दे नाल। सो ये जो असी पी ते एस में जॉइन करांगे तो ये की आ जाएगा एंगल 60 डिग्री का। सो इत्थे आपां इत्थे मैं तुहानूं दस दिंदा एंगल पी एस पी आर जिहड़ा एंगल होएगा ये की होएगा एंगल ऑफ 60 डिग्री का, ठीक है। सो एस पी आर ये की होएगा एक एंगल 60 डिग्री का एंगल होएगा। हुण इस तो नैक्सट की होएगा देखो कि जे हुण मैं इतों एक होर एंगल ड्रॉ करा, ठीक है, इस पॉइंट के उपर इस पी तो 60 डिग्री वो ए होएगा, जिहड़ा अगे फर्दर एंगल है वो कितना है, ये भी 60 डिग्री है। ए वाला एंगल तो ए वाला एंगल की है 60 डिग्री है, ठीक है।
इनू असी किद्दां प्रूव किया सीगा कि 60 डिग्री है, वो किया सीगा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के, ठीक है। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल इनू इत्थे ज्वाइन किया सीगा, जो पहला कंस्ट्रक्शन सीगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ 60 इस तरीके नाल, ठीक है। तो ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल कह दिता सीगा, ते ये वाला एंगल की आ गया सीगा अपना 60 डिग्री का एंगल आ गया सीगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल आ तीनों एंगल इक्वल आ, तिना एंगलों का जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के नाल 180 डिग्री सम होएगा, एक एंगल का जो मेजरमेंट आएगी दैन दैट विल बी इक्वल टू 60 आएगी। हुण नैक्सट की है, जे असी ये सिमिलर इस तरीके दे नाल एक ट्रायंगल इत्थे बनाइए, ठीक है, ये वाला, तो इधर की एस टी नूं जोड़ दिए, ओके। हुण इत्थे देखियो की होएगा, मैं दोनों का तुहानूं दस दिना। सब तो पहला तो इन ट्रायंगल की गल करते हैं एस पी आर की। सो जस्ट मैं दोबारा करन लगा 60 वाला, एक मिनट, ओके। ये 60 की जस्टिफिकेशन दोबारा लिखन लगा 90 के लिए दोनों लिखनिया पैनियां। सो इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल एस पी आर, ठीक है। इन ट्रायंगल एस पी आर ट्रायंगल दे विच की है, तिन्ने साइड्स इक्वल आ, ठीक है। पी या एस पी इज इक्वल टू एस पी इक्वल टू कि एस आर दे, ठीक है। एस पी एस आर दे इक्वल है, तो एस आर के इक्वल आ पी आर दे। ये थानू मैं दस चुका है, क्यों, क्योंकि एस पी जिहड़ा आ ते पी आर आ, ये दोवें की आ आर्क जिहड़ी आ एक आ, उहदे रेडियस आ दोनों, ठीक है। तो उस तो इलावा की है जिहड़ा आर एस है, ये भी रेडियस है, सेम रेडियस है जिहड़ी ये आर्क आ, सेम रेडियस तिन्नों दी असीं इहदे जिहड़े अपना विड्थ है वो सेम रखी सीगी जिहड़ी कंपस दी अपनी, ठीक है। सो ये तिन्ने साइडां साडे कोल इक्वल आ, दिस इहदे नाल साडे कोल की इंप्लाई हुंदा आ कि ट्रायंगल एस पी आर जिहड़ा आ इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आ, ठीक है। एक चीज़ तो ये प्रूव होंगी है साढ़े कोल इस तो, फिर इस तो नैक्सट की प्रूव होंदा है दिस इंप्लाई जे इक्विलेटरल ट्रायंगल आ तिने एंगल की होणगे इक्वल होणगे। सो एंगल एस इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर, किहदे केस च इन ट्रायंगल एस पी आर ते, ठीक है। एस पी आर दे विच तिने एंगल इक्वल आ, तो दिस इंप्लाई कि ईच एंगल जिहड़ा होएगा वो कितना होएगा एंगल 60 डिग्री के बराबर होएगा। एंगल दिस इंप्लाई एंगल पी विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। सो पी के बराबर आ जाएगा 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। सो इस तो बाद की है देखो हाँ सो ये तो अपने को 60 डिग्री दिया गया। हुण जे आपां गल करिए ट्रायंगल एस पी टी दी, ठीक है, एस पी टी या जो भी तुसीं टी एस पी पी टी एस जो भी करना है इनू, ठीक है। सो इस ट्रायंगल की जे आपां गल करिए देखो इहदे विच की होएगा इन ट्रायंगल एस टी पी लिख लो, एस टी ते पी, इस ट्रायंगल दे विच की होएगा सेम तिन्ने साइडां सेम होणगियां, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑल जिहड़ियां आर्क्स आ वो सेम रेडियस दियां, ठीक है। तो इत्थे की होएगा एस टी विल बी इक्वल टू एस पी विल बी इक्वल टू टी पी। सो सारियां साइड्स क्यों आ सेम रीजन आ, ऑल आर्क्स ऑफ सेम रेडियस, सारियां जिन्नियां भी आर्क्स आ वो सारी सेम रेडियस दियां। सो दिस इंप्लाई की करता है जिहड़ा ये भी ट्रायंगल आ एस टी पी है वो की है इज
एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये भी यही चीज़ प्रूव करता कि एस टी पी भी जिहड़ा आ वो भी की है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, हाँ ये भी की है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो दिस इंप्लाई की करते हैं फिर ये सारे एंगल की होंगे, एंगल टी इज इक्वल टू होएगा एंगल एस दे इज इक्वल टू एंगल होएगा पी दे। तो ये तो सानू होर की पता लग गया कि एंगल जिहड़ा आ पी, ठीक है, मतलब एंगल जिहड़ा एस पी ते टी है, एंगल एस पी ते टी वो की होएगा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री दे होएगा। ठीक है, इन्ना सानू पता लग गया जिहड़ा इस ट्रायंगल दे विच एंगल पी वाला वो की है एस पी ते टी है। सो एक ही हो गया 60 डिग्री दे। हुण असीं की करांगे कि इन्ना एक एंगल है उहदा बाइसैक्टर ड्रॉ करांगे। वो तुसीं पहलां भी कर चुके हैं, जिहड़ी वीडियो पहलां मैं तुसीं देखी होएगी एंगल दा बाइसैक्टर किवें बनाउणा आ उहदे विच। सो ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਧਰ 60 डिग्री हो गया, ठीक है। हुण मैं बनाउणा है 90 डिग्री का एंगल, 60 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं होर कितना ऐड करूँगा 30 डिग्री ऐड करूँगा। सो 30 मेरे को कितना आएगा 60 का हाफ करके। सो इधर वाला ये भी एंगल कितना है 60 है, ठीक है, 60 डिग्री है। हुण मैं इस एंगल का हाफ करदा तो मेरे को की बचेगा 30, वो जो 30 इधर बचेगा मेरे को उन्होंने मैं 60 नाल प्लस करूँगा। वो जिहड़ी लाइन भी 30 बनाएगी वो 30 प्लस 60 की हो जाएगा 90 हो जाएगा। सो हुण मैं इहदा एंगल बाइसैक्टर ड्रॉ किया सीगा, जिहड़ा इस पॉइंट ते रख के इधर आर्क ड्रॉ की ते इस पॉइंट ते रख के इधर आर्क ड्रॉ की ते उन्होंने ज्वाइन किया। वो मैं की कीता सीगा एंगल एस पी टी का बाइसैक्टर ड्रॉ किया सीगा, ठीक है। हुण जो इहदा बाइसैक्टर ड्रॉ किया ये तो सानूं ये पता लग गया कि ये वाला एंगल कितना आ 30 डिग्री का आ। सो दिस इंप्लाई, सो इस तो सानूं की पता लगता है, देखो इस तो सानू पता लगता है दिस इंप्लाई एंगल जो असी जस्ट इतने इंप्लाई नहीं लिखना हले आप एंगल किहड़े की गल करन जा रहे हैं आप एंगल एस पी टी जिहड़ा आ, ठीक है ना, ते एंगल एस पी यू है, ठीक है, ये पॉइंट यू है, एस पी यू हाफ है एंगल एस पी टी का, ये आप मैं दसता समझाता, ठीक है। सो एंगल एस पी यू इज इक्वल टू हाफ है किहदा एंगल का, एंगल किहड़ा आ एस पी टी का, एस पी ते टी का। सो इज इक्वल टू इत्थे क्या आ जाएगा हाफ ऑफ एस पी टी, मैं इत्थे फाइंड किया है कितना आया सीगा 60 डिग्री, 60 डिग्री करता। सो इत्थे क्या आ गया हाफ, इत्थे कैंसल होएगा, इत्थे क्या आ जाएगा 30 डिग्री। सो इत्थे साडे कोल क्या आ गया 30 डिग्री, ओके। सो एस पी यू किहड़ा एंगल है एस पी ते यू, ये एंगल कितना आया 30 डिग्री का। नाउ हुण की होएगा एंगल आर पी एस प्लस एंगल, देखो आर पी एस में प्लस कर दो एस पी यू दे नाल, एस पी ते यू, ठीक है। दिस इंप्लाई इन दोनों प्लस करांगे, आर पी एस कितना आया सीगा साडे कोल 60, जिहड़ा एंगल एस पी आर दे विच एंगल पी है पी पॉइंट ते वो की है आर पी एस, ठीक है। सो ये आर पी एस जिहड़ा है वो कितना आ साडे कोल, आर पी एस की आया 60 डिग्री, ठीक है, 60 आ गया, प्लस एस पी यू कितना आया एस पी यू वो कितना आया 30 डिग्री। सो दोनों को प्लस करके साडे को टोटल कितना आ गया 90 डिग्री। सो इस तरीके दे नाल जस्टिफिकेशन है। सो हुण ये तुहाडा फर्स्ट सम सीगा एक्सरसाइज 11.1 का, जिहदे विच मैं तुहानूं पहलां सब तो सिखाया हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द हैल्प ऑफ अ कंपस ऑन द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ रे। सब तो पहला मैं दोबारा हुण समराइज करन लगा है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट की है P, ठीक है, रे की है P क्यू है,
ਹੁਣ ਪੀ ਕਿਊ ਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਇੱਕ ਆਰਕ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਰਕ ਜਿੱਥੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੀ ਕਿਊ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਕ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਆਰਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਕ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਆਰਕ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪੀ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ।